Welcome back, children, to your English class. Today we will have the fourth part of the chapter, The Dragon Rock, chapter number 14 from your book My English Garden. So, children, in the third part we saw that finally the dragon rock became alive and he moved his nostrils. वो अपने जो nostrils हैं उनको move करता है and the movement of his nostril was so stormy that all the children fell down on the floor. ज़मीन पे सारे बच्चे गिर जाते हैं. Then see what happens. The older folk were alerted by the scream and shrieks. Soon the whole town stood together in a tight huddle at the foot of the hill. अब क्या होता है, when children started falling on the floor, they started shouting also, they started shrieking. Now listening to their screams and shrieks, all the villagers of the town, they started being alerted. वो alert हो गए, चौकन्ने हो गए उनकी चीखें सुन करके. Soon the whole town stood together in a tight huddle at the foot of the hill. अब now they came to know something is about to happen. Some kind of storm is about to come. So they in advance they all held tightly the hills. जो पहाड़ियाँ थी उनको सब एक साथ पकड़ के खड़े हो गए all together and staring up at the large beast without mouths held open. And all the villagers started looking at the beast यहाँ पर बच्चे चिल्ड्रन वो है जो कि ड्रैगन है. ड्रैगन एक बीस्ट, एक जानवर है. सो यहाँ पर वो सब उसको घूर रहे हैं, उस बड़े से जाइंट से बीस्ट को घूर रहे हैं विद माउथ्स हेल्ड ओपन and with their open mouth. Their mouths were open and they all were staring at the beast and hoping that now something good will happen to them to let them be free from the hot weather या hot summer. अब वो इतना समझ गए थे कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है. सो सब एक साथ इकट्ठा होकर टाइटली उन्होंने पहाड़ी पर खड़े हो गए सब लोग इकट्ठा और टाइटली हडल को पकड़ लिया. The noise erupted from the dragon. Now when the dragon opened his mouth, so the sound came right, या फिर जैसे करके बोलते हैं तो that sound came from that dragon's mouth. Again the same sound come The families gripped each other tighter and shut their eyes. So here one side all the people were happy, the other side they had a sort of fear. उनके अंदर fear था because the complete earth or their valley was shaking. और पूरी उनकी जो ज़मीन थी, घाटी थी, टाउन था, पूरा हिल रहा था. तो सारी जो फैमिलीज़ थी, लोग थे वहाँ पर, दे हेल्ड ईच अदर टाइटर एंड दे क्लोज्ड देयर आइज. अब उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली. नाउ सडनली वन मोर साउंड केम दैट वॉज आच्छू, यानी दिस इज़ स्नीजिंग साउंड, छींकने की आवाज़ थी. एंड द स्नीज ब्लास्टेड फ्रॉम द ड्रैगन like a rocket, throwing it back 50 paces, causing a whirlwind of dust and dirt. So children, the moment he sneezed, जैसे उसने अच्छू करके छींका, so sneeze burst like a blast. एक ब्लास्ट की तरीके से बस हुई आवाज़ आई, छींकने की आवाज़ थी, ब्लास्ट की तरीके से थी. and the sneeze threw the dragon back away far around 50 paces, यानी वो बहुत ज़्यादा दूर गिरा जाके उस छींक की वजह से. चिल्ड्रन यहाँ पर if you see yourself when we sneeze, so our full body gets shaken. वो पूरी बॉडी हिल जाती है जब हम छींकते हैं. सपोज़ इफ़ वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, सो क्या होता है, पानी छलक जाता है, कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है. तो सेम वेज व्हेन द ड्रैगन स्नीज्ड, the same moment he was thrown back far away due to that sneeze. वो उस छींक से वो काफ़ी दूर गिरा जाके, and that caused whirlwind of dust and dirt.
and because of that sneeze or because of his falling, the wind of dust and dirt started blowing. बहुत ज़ोर से आंधी की और डस्ट की धूल भरी हवाएं चलने लगी. Again he sneezed achoo. The second blast spilled open the dry earth, sending explosions of soil and trees roots high into the sky like missiles, and something else too. अब क्या होता है, when the second time he sneezed, the the dry earth opened, or you can say got cracks or got splitted. वो जो ज़मीन होती है वहाँ की वो फट जाती है. सेंडिंग एक्सप्लोजन ऑफ सॉइल, सो जो एक्सप्लोजन यानी एक तरह सॉइल में ब्लास्ट होता है एक तरीके से. एंड द ट्री रूट्स हाई इनटू द स्काई लाइक मिसाइल्स, एंड द रूट्स ऑफ ट्रीज वेंट हाई इनटू द स्काई लाइक अ मिसाइल. और जो पेड़ की जड़ें होती हैं उस एक्सप्लोजन की वजह से, उस विस्फोट की वजह से आसमान में इतनी ऊंचे उड़ जाती हैं जैसे लगता है कोई मिसाइल चली गई हो. The people heard the sound but could not recognize it at first, for it had been such a long time since their ears had heard such tinkling melody. अब चिल्ड्रन यहाँ पर इसको मेलोडी जो साउंड है, जो इसके अच्छू साउंड है, एंड देन द एक्सप्लोजन इन अर्थ, ये सारी साउंड्स लोगों के लिए एक मेलोडी थी, एक तरीके का मधुर सॉन्ग था जो कि उन लोगों ने काफ़ी समय से नहीं सुना था. बिकॉज आफ्टर ऑल दीज एक्सप्लोजन्स एंड आफ्टर ऑल दीज स्टॉर्म्स सम गुड थिंग यूज टू हैपन. पहले बहुत टाइम बाद ये चीज़ हुई थी कि धरती फटी और एक्सप्लोजन के साथ, एंड देन जो रूट्स थी ट्री के वो हवा में उड़ गई, एंड देन जो कंप्लीट अर्थ थी उसमें क्रैक्स पड़ गए, वो स्प्लिट हो गई, वो फटने लगी. सो इन सब चीज़ों को बेसिकली जनरली जब हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, बट यहाँ के लोग डर नहीं रहे, दे आर हैप्पी बिकॉज दे नो दैट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स सम गुड थिंग्स विल बी कमिंग. सो जो यहाँ के लोग होते हैं, they heard all these sounds after a long time, and to their ears these sounds were मेलोडीज़. उनके लिए जो साउंड थी, जो विस्फोट की साउंड थी और किसी चीज़ के फटने की साउंड थी, धरती के फटने की साउंड थी, इन सब चीज़ों ये सारी जो आवाज़ें थी इन लोगों के लिए बहुत अच्छी थी. क्यों अच्छी थी, वी विल सी. एज देयर आइज वाइडेंड इन वंडर, their smiles turned into grins, and then yahoo and hurrahs. अब क्या होता है, एंड समथिंग दे सॉ दैट their eyes became wide, उनकी जो आँखें होती और बड़ी बड़ी हो जाती. they saw something and they were wondered, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थे. एंड they had first seeing all these things they were smiling, but finally something happened that made them grin. कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जो स्माइल थी वो हंसी में बदल गई. एंड दे स्टार्टेड सेइंग याहू एंड हुर्राज, यानी नाउ क्या कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन करके देख करके बहुत ज़्यादा खुश थे. एंड दे स्टार्टेड मेकिंग सम साउंड्स लाइक याहू एंड हुर्राज. वी नो दैट दीज साउंड्स वी ऑल मेक व्हेन वी आर सो हैप्पी, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. Cool clear spring water oozed, then trickled, then roared out of the hole, down the hillside and along the valley floor. Now cool and clear spring water oozed. अब क्या हुआ, जो पानी था बिल्कुल कूल, द वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम द हिल टू द वैली. जो पहाड़ियों से पानी निकलने लगा, एंड द वाटर वॉज कूल एंड वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर, और पानी ऊपर की तरफ से वैली की तरफ बहने लगा. एंड देन रोड आउट ऑफ द होल, यानी जो पानी जब निकला तो विस्फोट के बाद, तो वहाँ पर रोड यानी दहाड़ने जैसी एक आवाज़ आई, और फिर पानी हिल से वैली की तरफ बहने लगा. तो पानी कैसा था, कूल था, क्लियर था, स्प्रिंग वाटर था, बहुत ही अच्छा वाटर था. What used to be a dirty
brown dust bowl now gleamed and glistened in the sunlight. Of what used to be the place where the people or villagers used to live, the place became brown bowl. ऐसा लग रहा था जो घाटी थी वो एक भूरे कटोरी की तरह बन गई थी, और वो कटोरा जो कि कम्प्लीटली ड्राई हो चुका था. देयर वॉज नो रेन एट ऑल एंड देयर वॉज ओनली हीट ऑल अराउंड. वहाँ पर सिर्फ क्या थी, गर्मी थी. एंड फाइनली वो जो ब्राउन कलर का बोल था, जो कटोरा था, जो फुल ऑफ डस्ट था, जो धूल से भरा हुआ था, वो अचानक से इट स्टार्टेड शाइनिंग, इट स्टार्टेड ग्लीमिंग एंड ग्लिस्टनिंग. तो ग्लिस्टनिंग इन सनलाइट, जो सूरज की रोशनी थी. अब बिकॉज द होल वैली इज़ फुल ऑफ वाटर, उसमें पूरी जगह पानी भर गया है, तो जो वैली थी, वो वैली का जो पानी था उस पर सनलाइट पड़ रही थी. द होल वैली वॉज शाइनिंग, बहुत चमकीली, ब्राइटनिंग हो गई थी, बहुत ही ब्राइट हो रही थी बिकॉज ऑफ द क्लियर वाटर. Sighed the dragon sleepily and showing his perfect movie star teeth, seeing as I am awake. अब वो क्या करता है, seeing water all around and seeing all the people happy. Now the dragon took a sigh of relief. या साइड मतलब एक गहरी सांस लेता है, और एक जो चैन की सांस लेता है. एंड फाइनली अगेन ही फेल्ट स्लीपी, वो उसको फिर से नींद आने लगती है. एंड ही शोड हीज परफेक्ट शाइनिंग टीथ, वो अपने चमकदार टीथ लोगों को दिखाता है, ये दिखाते हुए दैट आई एम अवेक, यानी मैं जगा हुआ हूँ. यानी अब जो ड्रैगन है, ही इज़ सीइंग एवरीवन ऑल अराउंड हु ऑल आर प्रेजेंट, उनकी तरफ देख के ये दिखा रहा है दैट नाउ आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ. बट द ड्रैगन अगेन फेल्ट स्लीप, उसको अभी भी नींद आ रही है, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी सीइंग द पीपल हैप्पी. एंड ही लम्बर्ड फॉरवर्ड विथ सरप्राइजिंग ग्रेस एंड स्टाइल and disappeared into the cool dark water with a small wave of a claw and flick of his tail. अब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ लम्बर्ड इज़ मूव्ड स्लोली, यानी धीरे धीरे मूव करना. सो फाइनली अपना काम करने, आफ्टर ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज जॉब, ही मूव स्लोली फॉरवर्ड एंड ही बिकेम डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया. एंड सरप्राइजिंगली ही बिकेम डिसअपियर्ड इनटू द कूल वाटर, वहाँ जो पानी भरा हुआ था उसी में वो गायब हो गया. एंड विद अ स्मॉल वेव ऑफ अ क्लॉ एंड फ्लिक ऑफ हिज टेल. यानी धीरे धीरे अपने जो उसके पंजे थे और जो उसकी टेल थी, उसकी पूँछ थी, धीरे धीरे करके सब पानी में गायब हो गया. दे नेवर सॉ हिम अगैन. सो व्हेन ही वॉज इन द वाटर एंड ग्रेजुअली स्लोली ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया. एंड देन आफ्टर ही वॉज नेवर सीन एनी वन, उसको वो कभी भी किसी को दिखाई नहीं दिया. After the families had restored and rebuilt the village, they erected a mountain in the spot where the dragon used to live. अब क्या होता है, after all these things, when the water came into that valley after a long time, they started restoring and rebuilding the village. अब क्योंकि अब पानी आ गया है, उन्होंने फिर से चीज़ों को, बिकॉज ऑल द थिंग्स वर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, सब बर्बाद हो रही थी, अब वो चीज़ों को फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, पूरे गांव को फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं. दे इरेक्टेड अ मोनूमेंट इन द स्पॉट वेयर द ड्रैगन यूज टू लिव. तो नाउ दे इरेक्टेड मीन्स दे मेड अ मोनूमेंट, मतलब एक काइंड ऑफ उसकी प्रतिमा बना दी, उसकी ड्रैगन की प्रतिमा बना दी उसी जगह पर, ऑन द सेम स्पॉट वेयर द ड्रैगन यूज टू ले, जहाँ पर वो पड़ा रहता था, लेटा रहता था, वहीं पर उसका एक विशाल मूर्ति बना दी. एवरी ईयर टू मार्क द ओकेजन दे वुड ब्रिंग गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड अरेंज देम इन अ बिग सर्कल. अब ना एवरी ईयर
every year they used to celebrate as a celebrate the same day एज अ स्पेशल डे, एक स्पेशल डे के तरीके से हर साल उसको मनाया जाता था. एंड पीपल वुड ब्रिंग गार्लैंड्स एंड डेकोरेट द ड्रैगन स्टैचू विथ फ्लावर्स, मेकिंग अ बिग सर्कल विथ फ्लावर्स. उसको पूरा उसकी स्टैचू को, ड्रैगन की स्टैचू को फूलों से सजा देते थे. एक बड़ा सर्किल फूलों का बनाते थे उसके चारों ओर. एंड द चिल्ड्रन वुड हैव द डे ऑफ स्कूल. और जो बच्चे होते थे दे यूज़ टू हैव दिस डे एज अ हॉलीडे. उनको एक छुट्टी मिलती थी. फॉर इट वॉज नोन एज वाटर ड्रैगन डे. एंड दिस डे व्हेन द चिल्ड्रन had a holiday, this day used to be considered और यूज़ टू बी सेलिब्रेटेड एज वाटर ड्रैगन डे. इसको नाम दे दिया गया इस दिन को. और उस दिन छुट्टी हो जाती थी बच्चों की और उस दिन लोग इसको मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे. एंड वेयरिंग द ड्रैगन मास्क्स they had been working on all week would skip and clap and sing. अब on the same day, on the water dragon day, they used to wear dragon mask and for a week before water dragon day came, they used to prepare for this day. They used to make mask for a week, and then they wore dragon mask and enjoyed this day by skipping, clapping and singing. उस दिन एंजॉय करते थे, डांस करते थे, गाना गाते थे, क्लैप करते थे ड्रैगन मास्क पहन करके. और उस मास्क की तैयारियाँ वो लोग एक हफ्ते पहले से करने लगते थे. And then they used to sing a song, the dragon helped us as we said he would do. Hooray for the dragon, achoo achoo achoo. And this is the end of the story. So children, earlier if you remember, they used to rhyme that in the time of trouble the dragon would come. But अब क्या इन लोग कह रहे हैं, जिसमें था कि वो आएगा, हमें बचाएगा. बट अब ये लोग क्या कह रहे हैं, द ड्रैगन हेल्प्ड अस. यानी अब ये बता रहे हैं ड्रैगन ने हमारी मदद की. जो भी हमने सोचा था उसने वैसा ही किया. हुर्रे फॉर द ड्रैगन, खुशी मनाओ ड्रैगन के लिए. अच्छू अच्छू अच्छू. वाई दिस अच्छू साउंड सेड? बिकॉज दिस आफ्टर दिस साउंड ओनली द अर्थ गॉट इरप्टेड. वो फट गई थी और उसमें से पानी आ गया था. So by this, children, the writer Elena Ashley ended the story. I hope that you have understood this chapter very well. And this is again an imaginary story which is all fictional. बिल्कुल आप कह सकते हैं कल्पना पर आधारित है. These things cannot happen in future or in present as well. कभी ना हुई है, ना होती है, ना कभी होंगी. बट येस, वी कैन इमेजिन. हम इमेजिन कर सकते हैं. वी कैन विश, हम विश कर सकते हैं गॉड से दैट समथिंग, द थिंग्स सच लाइक दैट मे हैपन by the grace of God in future ever. Right, children? So any doubt is left, please ask your question, get cleared your doubt. And saying this, I would say thank you, children. Bye bye.